ماشاءاللہ کل سے بہترین پروگرام چل رہا ہے. کل کا پروگرام بھی بہت مفید اور مؤثر تھا، اور آج جس طرح سے یہاں ہو رہا ہے یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. میں نہیں چاہتا کہ جو باتیں پہلے ہوئی ہیں کسی بھی بات کو دہراؤں. دیکھیں، لیڈرشپ کی تعریف کیا ہے، قیادت کسے کہتے ہیں؟ جو جینون قیادت ہوتی ہے. عوام کے بغیر کوئی قیادت نہیں ہوتی. لیڈرشپ نہیں ہوتی. اس کا گہرا تعلق عوام کے ساتھ ہوتا ہے. لیڈرشپ عوام کے لاشعور میں لکھے گئے عزائم، آرزوئیں، امنگیں اور ارمان ان کو پڑھتی ہے، ان کو پھر زبان دیتی ہے. جب لیڈرشپ بولتی ہے عوام سمجھتے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں. جب لیڈرشپ موو کرتی ہے، حرکت کرتی ہے، عوام سمجھتے ہیں کہ ہم حرکت کر رہے ہیں. اتنا آپس میں سینکرونائزڈ ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان کے عوام کی امنگیں اور آرزوئیں کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اگر ہم ان کے مطابق آگے بڑھیں گے عوام ساتھ دیں گے. اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے لوگ ہمارا ساتھ ہی دیں گے. انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے آزادی، استقلال، حریت. یہ فطری ہے انسان کی. ایک بچہ بھی جب چلتا ہے کہتا ہے میں خود چلوں گا، ہاتھ چھڑواتا ہے. وہ مستقل اور استقلال کی بات کرتا ہے، آزادی کی بات کرتا ہے. اور یہ آزادی کا وہ آہنگ ہے جو فطری آہنگ ہے، جس کو دنیا کا کوئی فرعون نہیں دبا سکتا اور ختم نہیں کر سکتا. یہ باقی رہتا ہے، رہنا ہے اس نے. عمران خان نے عوام کی آرزو اور امنگوں کے اس صفحے کو پڑھا ہے، ان کو زبان دی ہے. وہ اپنی زبان میں بولتا تھا، اردو میں بات کرتا تھا، اور عام فہم اردو میں، تاکہ لوگ سمجھے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اس نے عوام کے ساتھ اتنے ڈائریکٹ کیا باتیں کی کہ عوام کو میرے ساتھ مربوط کر لیا. آج اگر پاکستان میں سیاست زندہ ہے عمران خان کی وجہ سے ہے. اگر خدا نہ خاصہ وہ جھک جاتا، وہ بک جاتا، وہ ڈر جاتا، خوفزدہ ہو جاتا، آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. آج اگر سیاسی زندگی ہے، سیاسی حرکت ہے، تو اس کی وجہ سے ہے. پھر ان سیاسی قیدیوں کی وجہ سے ہے جو بھی جیلوں میں ہیں، یاسمین راشد کی وجہ سے ہے، سینیٹر اعجاز چودھری کی وجہ سے ہے، اور اسی طرح سے عمر سرفراز چیمہ اور باقی جو سیاسی قیدی ان کی وجہ سے ہے. پھر ان شہیدوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے خون دیا ہے، جن کے جنازے اٹھے ہیں. جس تحریک کو شہداء اپنا خون دیتے ہیں، جو لہو رنگ ہو جاتی ہے، جس کی آرزو اور ارمانیں اپنے وطن کی زمین پر، کرتاس زمین پر خون سے لکھی جاتی ہیں، دنیا کا کوئی فرعون خون سے لکھی ہوئی تحریر کو نہیں مٹا سکتا. وہ باقی رہتی ہے، اور یہ باقی رہیں گے ہمارے ہیروز ہیں. لہذا ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو اس وقت ہم یہاں جمع ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ عمران خان کی استقامت، مقاومت اور ثابت قدمی ہے. دیکھیے، دو طرح کی تحریکیں ہوتی ہیں. ایک ہے ریفارمز، آئین اور دستور کو قبول کرتے ہوئے، ملکی قانون کو قبول کرتے ہوئے اس کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کرنا. پھر الیکشن کے ریفارم لانا، پارلیمنٹ کے ذریعے، عدلیہ کے ذریعے، اور اسی طرح سے حکومت کے ذریعے. جب الیکشن کے ذریعے یہ حکومت بنے گی اور ادارے ڈیولپ ہوں گے تو ریفارمز ہوتی ہیں. جب ریفارم کے سارے راستے بند ہو جائیں تو پھر وہ سوشل کنٹریکٹ جو آئین کی شکل میں ہوتا ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے. اس کو کوئی فائدہ نہیں رہتا. پھر وہ جو جوڑنے والی چیز ہے، ایک چیز عوام کو جوڑنے والی، جہاں پولیٹیکل پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے، جو اللہ کی نعمت ہوتی ہے، وہ ہے ان کی مشترکہ آرزویں اور امنگیں اور ارمان ہیں، اور آئین ہے. آئین کیا ہے؟ عوام کی آرزوؤں، امنگوں، ارمان، عقائد، افکار، نظریات کی شکل میں کو ایک کتاب کی شکل میں ڈال دیتے ہیں، ایک کنٹریکٹ کی شکل میں ڈال دیتے ہیں، وہ آئین بن جاتا ہے. اور اگر اس پر عمل نہ ہو تو پھر وہ آئین بے معنی ہو جاتا ہے، وہ سوشل کنٹریکٹ بے معنی ہو جاتا ہے. پھر ریفارمز کے لیے، پھر ریفارمز جب نہیں آ سکتی اس آئین کے تحت، وہ آئین بے معنی ہو جائے گا، اور پھر لوگ دوسرے راستے اختیار کریں گے.
वो रास्ते कौन से हो सकते हैं? जैसे कल भी बात हुई थी यहाँ पर, हमारे बाद इंटेलेक्चुअल ने बात की थी, वो रास्ते हो सकते हैं। उस दिन मौलाना फजल रहमान ने भी कहा, जब महमूद खान जगदई साहब के यहाँ प्रोग्राम था, कि पाकिस्तान टूट रहा है, पाकिस्तान टूट रहा है। एक रास्ता ये हो सकता है कि वतन टूट जाए, और खुदा न करे टूटे, हमारा वतन खुदा न करे टूटे। जब नाअमनी पैदा होती है, फिर हर खुश्क तर उसमें जल जाता है, नाअमनी की आग में तबाह बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाती है। ना हमारे पास की शनाख्त रहेगी, ना आइडेंटिटी रहेगी। कहां जाएंगे दुनिया में हम? किधर हम रुलेंगे? इन नाअहल और नालायकों के हाथ में अगर पावर रही तो ऐसे ही होगा। इनके हाथ तोड़ने पड़ेंगे, इन्हें जहां होना चाहिए वहां बिठाना पड़ेगा, ताकत से और आवाम की ताकत से। एक ये रास्ता है कि लोग जो हैं, लोग आपस में फिर सोशल कंट्रोल खत्म है। आप पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप को अगर आप जो अल्लाह की नेमत उसके वजूद से इस्तेफादा नहीं करेंगे, और आप फिर पाकिस्तान के दुश्मन हैं, फिर आप वतन के दुश्मन हैं, आप गद्दार हो। हम मुहिब्बे वतन हैं, हमें किसी से ये तमगा दीजिए कि हमें मुहिब्बे वतन होने का तमगा दे। हम मुहिब्बे वतन हैं, हम आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, और तुम आइन शिकन हो, तुम कानून शिकन हो। तुमने वतन तबाह किया है, तुमने मुल्क तोड़ा है, तुमने नफरतें बांटी हैं, तुमने तकसीम किया आवाम को, एक कौम नहीं बनने दिया हमें, हर इदारा तबाह तुमने किया है। एक रास्ता ये है, और दूसरा रास्ता क्या है? उसी पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ खड़ा हुआ जाए, और इनकलाब का रास्ता है। दूसरा रास्ता ये बचता है, ये टूटेगा या इनकलाब, ये रास्ता है। लिहाजा अगर ये रिफॉर्म्स के सारे रास्ते बंद करेंगे, हमें इजलास नहीं करने देंगे। देखें, यूं लगता है इस्लामाबाद पायदाश्त से ये गरीजन बन गया हमारे लिए। पाकिस्तान के सियासतदान यहां हमारी बेटी महरंग आई, बलोचिस्तान से आई एहतजाज करने के लिए, अपनी आवाज बताने के लिए। आपने उसे पकड़ा, मिस हैंडल किया, उसे थाने में ले गए। वतन की बेटी को तुमने नफरत तकसीम की। तुमने क्या पैगाम भेजा बलोचिस्तान में कि तुम बेटियों के ख्वातीन की इज्जत नहीं करते हो? ये आपने किया। मिसिंग पर्सन कहां नहीं है? मेरे दोस्त, मेरे साथी, उठने बैठने वाले 9-10 साल से मिसिंग है, बलूचिस्तान से मिसिंग है, सिंध से मिसिंग है, पंजाब से, केपीके से मिसिंग है। अब देख लें, अब हुकूमत बज़ाहिर कहती है हम हैं, तुम नहीं हो। असल हुक्मरान वो विसाखी है जिन पर तुम खड़े हो। केपीके के अंदर कोरम में देखें कितना अरसा हो गया, रास्ते बंद हैं। अभी माह रमजान आने वाला है, 6 माह होने वाले हैं, रास्ते बंद हैं। आप देखते हैं चीजें कितनी महंगी है, लोग आ जा नहीं सकते। जो ओवरसीज थे उनके वीजा खत्म हो गए, हजारों। और फिर इलेक्टेड नुमाइंदा हमारा, वहां का तहसील मेयर, उसके देखिए हथकड़ियां लगी हैं, 3 एमपीओ के साथ बंधा हुआ है। पता क्या, जो यतीमों की परवरिश करता है बगैर किसी कबीले के, ये तूरी है, बंगश है या गैर बंगश, सबकी खिदमत करता है। वो यतीम बच्चों की कफालत करता है, घरों में खाने पहुंचाता है। इसीलिए वो सबसे ज्यादा वोट लेकर तहसील कुरम का चेयरमैन बना। आज वो जेलों में सड़ा जा रहा है, दहशतगर्दी के पर्चे काटने की उसके ऊपर 7-8 ये लगाया गया है। ये हमारा पाकिस्तान, ये अवाम के वोटों की, जैसे 8 फरवरी को अवाम की तौहीन की गई, उनके हाथ पर डाका डालकर, जो कह रहा नहीं था, उनका वोट छीना गया, लूटा गया। हर जगह ऐसे हो रहा है। पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अवाम का है, पाकिस्तान के अवाम इसके मालिक है, पाकिस्तान के अवाम इसके वारिस है। ये पाकिस्तान की सरजमीन इनकी है। इनकी जमीनों में जो मादिन है वो अव्वल मालिक ये हैं। उन वसाइल के इम्कानात के अव्वलीन मालिक वो हैं जो वहां रहते हैं। वो पाकिस्तान नहीं था तो वो रह रहे थे, पैदा वो मालिक वो हैं। उनके हक छीनना, लूटना दुरुस्त नहीं है। अब जीबी के हालात देख लें आप, जीबी के लोगों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है, ग्रीन टूरिज्म के नाम पर उनकी मादनियात, उन पहाड़ों पर कब्जा हो रहा है, मादनियात छीनी जा रही हैं। अवाम में अंदर से वो डिस्ट्रिब्यूटेड एरिया है, और वहां तुम क्या कर रहे हो? जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वहां पर वे शेड्यूल 4 में है, और तुम उन कुव्वतों को ताकतवर बना रहे जो पाकिस्तान से जुदाई जाती हैं। आप आजाद कश्मीर, रियासत कश्मीर में देख ले अवाम के साथ क्या हो रहा है। पूरा पाकिस्तान कैद खाना बना हुआ है। पाया तख्त, इस्लामाबाद, ये जिंदान है। ये क्या एक्सटेंशन है डाला जेल की? ये है क्या? जहां अपनी आजादी के साथ प्रोग्राम नहीं कर सकते,
हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते, पाकिस्तान पूरे के सियासतदान हम इकट्ठे नहीं बैठ सकते, मुल्क की बेहतरी के लिए बात नहीं कर सकते मिलकर। आखिरी बात देखा, पावर पॉलिटिक्स, सारी बीमारियां और खराबियां पावर पॉलिटिक्स से नतीजा होती है, ये मेरा मानना है। पावर पॉलिटिक्स से भी इक़्तिदार के लिए जद्दोजहद करना, इक़्तिदार के हुसूल के लिए जद्दोजहद करना, इक़्तिदार का असूल मकसद और हदफ है, ये फिरौनी सियासत है। फिरौन को जब पता चला तुम्हारे इक़्तिदार को खतरा कि बच्चा पैदा होगा तो सारे बच्चे मार दो। जब इक़्तिदार को थ्रेट होगा जेलों में डालो, कत्ल करो, मारो, 26 नवंबर बनाओ, लोगों झूठे पर्चे बनाओ, झूठ का नैरेटिव बनाओ और अल्लाह बना दो, किसी को मुकद्दस बना दो, खुदा हो जाते हैं। खुदा के अलावा कौन मुकद्दस है? मैं और अंबिया के अलावा, औलिया अल्लाह के अलावा किसी के साथ बात नहीं कर सकते आप। अब तनकीद करेंगे, आप जेल जाओ, अपनी क्या अमरीका पावर पॉलिटिक्स तमाम बुराइयों की जड़ है। जो जुल्म हुआ क्यों? हर हाल में इक़्तिदार बाकी रखना है। ऐसे हम क्यों मारेंगे? हर हाल में इक़्तिदार बाकी रखना है। ममालिक पर क्यों सेक्शन लगाई जाती है? क्यों वहां जुल्म होता है? क्योंकि हमें हर हाल में अपनी हेजमोनी को बाकी रखना है। पावर पॉलिटिक्स तमाम बुराइयों की जड़ है दुनिया में, तमाम नाअमनी की, नाइंसाफियों की। मैं जो खान साहब को समझाऊं वो पावर पॉलिटिक्स का मुखालिफ है। वो क्या कहते हैं? हमें पावर चाहिए किसके लिए? रूल ऑफ लॉ। पावर चाहिए किस लिए? रूल ऑफ लॉ के लिए। इक़्तिदार हदफ और मकसद नहीं है, पावर रूल ऑफ लॉ के लिए, आईन की सरबुलंदी के लिए पावर चाहिए। लिहाजा जब ये नजरिया हो जाता है तो फिर इक़्तिदार और उसूल और प्रिंसिपल इक़्तिदार पर कुर्बान नहीं होते, इक़्तिदार प्रिंसिपल पर कुर्बान हो जाता है। अगर वो पावर पॉलिटिक्स कर रहा होता तो गोलियां लगी थी, बात चला जाता, अपनी जान बचाता, कहता बचूंगा तो फिर हुकूमत। अगर वो पावर पॉलिटिक्स कर रहा होता, जेल में कंप्रोमाइज करता, 2 साल जेल में न रहता और वो इन फिरौनों के मुकाबले में ऐसे न डटा रहता, जालिमों के मुकाबले में, कातिलों के मुकाबले में, बेरहमों के मुकाबले में। वो पावर पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, इसीलिए वो अजीज वतन है, इसीलिए वो मजलूमों की वो आवाज बन चुका है। इसीलिए वो मजलूमों की आवाज बन चुका हुआ है, पाकिस्तान के मजलूमों की। इसीलिए दुनिया में लोग उसके साथ हैं। वो हीरो है, वो पाकिस्तान की इज्जत है। उसको हटाया गया। मोदी के मुकाबले में इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कौन स्टैंड कर सकता था? कौन खड़ा हो सकता था? कौन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था? और मोदी की आंखों का कांटा था वो, और उसके गले की हड्डी झाटी था वो। मोदी के लिए रास्ता साफ करने के लिए उसको गिराया गया। पाकिस्तान को उसके मुकाबले में ये हुक्मनाम रिप्रेजेंट करेंगे जो कहते हैं बैकर्स हैं, वेंटिलेटर पर हैं, जिनको बात करनी नहीं आती, जो कभी कोई किताब नहीं पढ़ते, जो जेल में 30 ज्यादा के बारे में मुताला करता है, पढ़ने वाला आदमी है। जो नहीं पढ़ता, किताब से दूर रहता है, वो कैसा, वो इंसान कहाँ का है? लिहाजा ये चाहते हैं कि हम गूंगे हो जाएं। पाकिस्तानी मुआशरा गूंगों का मुआशरा, अंधों का मुआशरा, बहरों का मुआशरा पीका लेके आए। जितनी भी तरामीम हुई, आईनी तरामीम हुई, हमारे दोस्तों के अगर उसमें पॉजिटिव थिंकिंग थी, लेकिन रिजल्ट बुरा निकला है। जो बिल बने, रिजल्ट पाकिस्तान के अवाम की परसेप्शन क्या है कि हमारी जो अदलिया है वो मकबूजा कश्मीर बन चुकी है। पाकिस्तान की जो रियासत के सतून है सारे ढह चुके हैं, मकबूजा हो चुके हैं। इसलिए अब माजी से आगे बढ़ना होगा। आईन की सुप्रीमेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए आगे निकलना होगा, इक़्तिदार के हुसूल के लिए नहीं, पावर पॉलिटिक्स के लिए नहीं। अवाम भी यही चाहते हैं। जो इक़्तिदार का भूखा होगा वो अवाम की नजरों में गिर चुका है, जो वाज़ेह होता जाएगा गिरता रहेगा। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान बचाना चाहते हैं। हम सारे इकट्ठे हुए हैं। शुक्रिया है खान साहब का, महमूद खान साहब का, शहद खान अब्बासी का साहब का और बाकी दोस्तों का कि आप सब ने और हम सब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के पैगाम हम सब ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह इस आज के प्रोग्राम को मुनक्किद किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे